handling of manuscripts and other archival material. So this is day 2 and this is our today's topic, accessioning, cataloging of archival material, handling of manuscripts and other archival material. So hereby just I want to request the co-host, अगर किसी का साउंड ऑन हो जाए तो उसको कृपया आप लोग म्यूट करें, बस इतना ही. This is an humble request. You just see here the register. What is this? If you are visited any libraries or any archives, any museums, then you can see such type of the registers are there. आज भी इस तरह के registers वहां पर use किए जाते हैं. And what is this? This is called as the accession register or this acquisition register or entry register like that. So यहाँ पर हमें आज की तारीख में जब हम आर्काइव्स और म्यूजियम्स की जब बात करते हैं, so उस समय जब कोई भी कलेक्शन हमारे यहाँ आना है, when we want to keep any collection in our archives or museum, before of that just check these things. Is it related to your archives or museums mission? If yes, is there any documentation? If not, then set aside and then we will reevaluate it. If yes, then is there any documentation? इसके पहले कुछ documentation हुआ है? If not, then we need to start it as per the priority. Then if yes, if it is already documented, then what is the condition? Is it good, fair or poor? If it is good, then you can start your accession number and that all. If it is in fair condition, then you need to check it again. And if it is in poor condition, then first repair it and then you start it. This is an acquisition flow chart. If any object, any archival material, the same thing, same process in the museums and archives. So please try to understand over here with the archives. So if it's if anyone donate the objects to you, सबसे पहले तो ये कोशिश कीजिएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा जो उद्देश्य है उसके साथ रिलेवेंट है. तो वो डोनर जो लेके आता है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा हिंदी में कहूंगा, अगर समझने में दिक्कत होगी तो कृपया मुझे पूछिएगा. इफ एनीवन डोनेट, अगर किसी ने दे दिया तो जो दिया है या जो आप लेके आए हैं उसका एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं कि 1000 ऑब्जेक्ट्स. लेट अस सपोज दिस इज ओनली 1000 ऑब्जेक्ट्स किसी ने आपको डोनेट किए हैं. देन यू चेक इट दैट 1000 ऑब्जेक्ट्स आर रिलेवेंट विथ योर मिशन और नॉट. If 700 objects are relevant and 300 are not relevant, then you please return it. That 300 objects you return to him. Okay, so it means that the total parcel have the 1000 objects, but you accepted 700, you return 300. Okay, then remove item to holding area and tag with receipt number. Okay, after this process, remove item to holding area and tag with receipt number. Then अभी आप जो ऑब्जेक्ट एक्वायर किए हैं या नहीं किए हैं, इफ इट्स रिटर्न और कुछ ये किए हैं, तो अगर उनके घर से लाते समय इफ यू टुक दैट ऑब्जेक्ट्स, इफ यू accept that donation from the donor's house, at that time there also the numbering system. आप वहां पर भी उसका नंबरिंग करेंगे. You need to make a list there at the donor's own place. Okay, owner's place only. और उसका फोटोग्राफी, नॉट ओनली द नंबरिंग, द फोटोग्राफी आल्सो नीडेड. जो देने वाला है उनके घर में उसका फोटोग्राफी करना है. उस फोटोग्राफ का नंबर, फर्स्ट द लिस्ट नंबर, फोटोग्राफ नंबर एंड लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन एट द ओनर्स प्लेस. देन जब आप वो लेके आएंगे, अगर पहले से आपका तय हो चुका हो कि ये हमारे मिशन के साथ ओके है, आप लेके आना है, ये मैं प्रेजेंट वर्तमान के इसमें बोल रहा हूँ, पहले तो ऐसा नहीं होता था. बट इन टुडेज व्हेन आई वाज देयर वर्किंग एज द हेड फॉर यूनिवर्सिटी म्यूजियम, तो उस समय में हम लोगों ने पहले ये तय किया था कि ये ऑब्जेक्ट्स हमको लाने हैं. पहले जाकर के हमने उसे देखा था, बात की थी, फिर उसके बाद हम लेके आए. सो वहीं पर जहां आप ओनर के घर पर एट द ओनर प्लेस आप जब उसका लिस्ट बनाएंगे, दैट टाइम अगर वो आपका रिलेवेंट नहीं है या आपके लिए यूजफुल नहीं है, रिजेक्ट इट एंड ओनली मेक द लिस्ट रिलेवेंट ऑब्जेक्ट्स. और जो आप आपके यहाँ लेके आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ, आपके संग्रहालय में आने के बाद जब आपको पता चला, उसके बाद भी आप उसको
रिटर्न कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आर्काइव्स और म्यूजियम्स में वो रिटर्न नहीं किया जाता है, वो स्टोरेज में रखा जाता है। उसकी वजह से प्रॉब्लम यह होता है कि बाद में जो यूजफुल थिंग्स है वो रखने के लिए भी जगह बस नहीं होती है। इट्स लिटरली बिकम द वर्ड विच वी यूज्ड यस्टरडे, डंपिंग ग्राउंड्स, डंपिंग स्टेशंस लाइक दैट। सो ये बात हो जाती है। कई सारे संग्रहालयों के बाहर देखिए, कई सारे आर्काइव्स में देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स रखने के लिए ठीक से जगह नहीं होती, आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए ठीक से जगह नहीं होती। वो उसको कैसे जैसे मिला उस तरह से बांध के रख देते हैं। सो दिस इज व्हाट द वर्स्ट सिचुएशन, बट if it is really important, then you accept it, and after accepting, then tag object with an acquisition number. Okay, then record acquisition number in register, and that register is called as the accession register. Okay, एक्विजिशन के बाद एक बार आपने वो रिसीव कर लिया, आपके इसमें रखा, फिर भी बाद में समझ में आया, आफ्टर ऑर्डर और द डिस्कशन ऑफ द कमिटी, उसके बाद भी समझ में आया, तो रजिस्टर में आप जो परमानेंट एंट्री रजिस्टर, इट्स कॉल्ड परमानेंट एंट्री रजिस्टर, एक्विजिशन रजिस्टर, एक्सेशन रजिस्टर, उसमें आप लिखने से पहले तक आप उसको रिटर्न कीजिए। एक्सेशन रजिस्टर में एक बार लिखने के बाद अगर रिटर्न करने की बारी आई तो बहुत सारी और प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। देन अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कोई कलेक्शन आपके यहाँ पर आता है, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट काउंट द बॉक्सेस। अगर कुछ बॉक्सेस आते हैं, कुछ भी पैकेजेस आते हैं, फर्स्ट काउंट द बॉक्सेस एंड द वॉल्यूम्स, बुक्स और आइटम्स वट एवर बी देयर इन दैट बॉक्सेस, और उसको एक नंबरिंग कीजिए, बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 लाइक दैट। देन ऑब्जेक्ट जो है उसका नंबरिंग कीजिए। अगर उसमें से आपको अगर ऐसा लगता है कि ये अभी वापस देने लायक है, देन उसको वापस कर दीजिए, रिटर्न इट इफ इट इज इन रिटर्न कंडीशन, और इफ इट्स नॉट प्रॉपर फॉर योर archives or the museum, then return it and then start the numbering. Then एक बार जब आपने उसको खोल दिया, जब आपने उसका लिस्टिंग बनाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद आपको जो है पहले तो उसका अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड करना होगा। जैसे अगर आपके पास लेट अस सपोज डॉक्यूमेंट्स आर देयर, मैप्स आर देयर, द कॉइन्स आर देयर, द फिलाटेली कलेक्शंस आर देयर, एल्बम्स आर देयर, तो ग्रुप वाइज उसको सेपरेट कर दीजिए। ओके, देन यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। यहाँ पर उसके बारे में एक सिस्टम दिए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हैव रेडी, काम करना है तो उसके लिए आपके पास पेंसिल, पेपर और ये सभी रेडी रहना है। हैव क्लीन हैंड्स एंड अ क्लीन ड्राई एरिया टू वर्क इट। बहुत बार ऐसा होता है आर्काइव्स और म्यूजियम में कोई डोनर हमें कुछ गिफ्ट कर देता है और हम वो लोग डायरेक्टली हमारे स्टोरेज एरिया में ले जाते हैं। इट्स नॉट गुड, इट्स अ बैड प्रैक्टिस। ये पहले तो उसको कहीं पर इस तरह से रखिए कि जहां पर आप उसको पूरे बॉक्सेस को खोल करके पहले चेक कर सके व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट मटेरियल। यू नीड टू क्लीन इट, पहले तो उसको क्लीन कीजिए, फिर उसको कहां पर ले जाना है, ट्रीटमेंट एरिया जो भी आपका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन अगर लैबोरेटरी होगा वहां लेके जाना है, स्टोरेज में लेके जाना है, डिजिटाइजेशन में लेके जाना है, डिस्प्ले एरिया में डायरेक्टली लेके जाना है, व्हाटएवर बी देयर। सो यू नीड टू डिसाइड दैट। देन अभी एक बार उसको आपने ये कर दिए, ये सारे नीचे जो दिया है बॉक्स और वॉल्यूम नंबर्स, टाइटल्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस, वॉल्यूम, बॉक्स कंटेंट्स, उसमें क्या रखा है, कवरिंग डेट्स अगर कुछ है, नोट्स ऑन प्रॉब्लम्स, कंडीशंस, जो भी आपको लिखना है वहां आप लिख सकते हैं। एनएमएम, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का अगर फॉर्म आपने फिलअप किया होगा तो उसमें भी कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। अगर कुछ डैमेज वगैरह है उसके बारे में भी लिखना है। हियर इज एन एग्जांपल, सो मिस इन एग्जांपल here are 12 boxes. What are there in the boxes? Papers are there. So rough dates on the documents are up to 1890 to 1950. And box 2 diaries, loose bindings and previous water damage. The condition. Then another example, Mr. Ernest example, 3 volumes, photographs albums are there. Photographs with some letters and postcards. Dates are around 1935 to 1945. Volume 3, some photographs loose. जो भी remark आपको लिखना है. So this is what स्टार्टिंग फेज प्रैक्टिस। ये शुरुआत में जब कोई भी कलेक्शन आपके आर्काइव्स में आएगा, म्यूजियम में आएगा, उस समय आपको ये करना है। आफ्टर माय 14 years एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, आई वांट टू से दैट दिस इज एन बेस्ट प्रैक्टिस। जब भी कोई कलेक्शन आपको मिलेगा, स्टार्ट में आपको ये करना है, एंड देन वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो अ सिंपल लिस्टिंग टास्क may also give a chance to clean your storage area and check for evidences of any place. Then accessioning procedure.
After acquisition, the item is then recorded in the museums or archives accession register, which is the original source of information about the collection. So it should always be kept in safe place, and if on computer, make sure ये accession register जो भी आप बनाएंगे उसके लिए बताया है. But before of that, just want to ask, what is an accession number? This is actually a unique registration number. So यहाँ पहले जो है इन पास्ट डेज पहले क्या किया जाता था, उसके लिए एक नंबर, शुरुआत में उसको ABCD ऐसे नाम दिए जाते थे, उसके बाद उसका नंबर लिखा जाता था. बट इज इट गुड और नॉट, उसके बारे में भी हम देखेंगे. सो व्हाट आर देयर, व्हाट शुड वी नीड टू मेंशन देयर. So this number is the key to linking that item to the information associated with it, and the numbers are entered sequentially into the register. Object name and very brief description. Okay, acquisition method, name and contact details of donor, date of acquisition. So यहाँ फिर से accession number क्या है उसके बारे में बताया है. Then here you can see the unique identifier assigned to a group of archival materials that have been transferred into the legal custody. एक बार आपने ये नंबर लिख दिया वहां पे, तो आप लीगल उसके ओनर हो गए, ये याद रखिए. एंड यू विल बी द रेस्पॉन्सिबल पर्सन और द रेस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन आफ्टर पुटिंग द accession number with that object. Okay, so accessioning practices and procedures, basic assumptions and practices. The institutional archives receives institutional records by transfer and institutional manuscripts collection by donation or purchase. एक चाहे आप वो खरीद के लाइए, चाहे वो गिफ्ट में मिले. मल्टीपल accessions may be received in a single day. अभी ये कैसे ये हो गया कि एक ही दिन में कई सारे कलेक्शंस आपको प्राप्त हो सकते हैं. ओके, सो या फिर एक ही व्यक्ति से कई सारे अलग अलग कलेक्शंस आपको मिल सकते हैं. So an accession may be organized in accordance with the retention schedule, or it may be a box, envelope, or random record. It may contain one or multiple series. In each case, some records may not be archival and will need to be destroyed. Sometimes it happened. क्योंकि अगर बहुत ही डैमेज्ड कंडीशन में है, अब जिसने दिया है डोनर जो है, वो अगर उसको रिटर्न नहीं लेना चाहता है, तो आपको उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. समटाइम्स कुछ आइटम्स ऐसे हो सकते हैं जिससे आपका संग्रहालय का स्टाफ और जो आपका भी ऑब्जेक्ट्स है संग्रहालय के, वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है. सम ऑब्जेक्ट्स और सम मटेरियल विल बी देयर, it may be harmful for your staff or the other objects in your archives or the museum, so you need to destroy that. अगर कुछ पॉइजनस आइटम्स वगैरह हो गए या फिर कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल वगैरह होगा तो उसके साथ में. अब ये एक्सेशन नंबर की जब बात करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार कई सारे बहुत बड़े बड़े आर्काइव्स और म्यूजियम्स में भी ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हम ओल्डन डेज में जो प्रैक्टिसेस किए जाते थे, जहां पर लोग लिखते थे ABC, आज भी आप गूगल में सर्च कर लीजिए, वहां आपको ऐसा कोई ना कोई तो एक कैरेक्टर मिलेगा, फिर उसके सामने कुछ नंबर मिलेगा. बट द बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पर जो आपको दिखाया है 3 पार्ट नंबर, यहाँ आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट आईडी नंबर 2001.1.1. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? दिस फर्स्ट इज द ईयर, सेकंड इज द लॉट नंबर, थर्ड वन इज द आइटम नंबर. ओके, सो यहाँ पर आपको जो है लॉट नंबर और बॉक्स नंबर वो आप डिफाइन कर सकते हैं आपके खुद के कलेक्शन जो मिल रहा है उसके हिसाब से. द फर्स्ट थिंग इज दैट इसकी वजह से आपको जो है एक साल में चाहे जितने लॉट्स मिले, तो वो लॉट्स आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे 2001 में आपको 1 to 10 लोगों ने डोनेशन दिए हैं, या फिर अगर बॉक्सेस है तो आपको वहां पे ऊपर ही ये लिखना होगा कि ये किस लॉट में से है. एक बार अगर आपने ऊपर टाइटल में लॉट लिख दिया तो उसके बाद आपको ये नंबर देने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी. हियर इज द ईयर, हियर विल बी देन बिकम द बॉक्स नंबर, and here it will become the item number. Okay, object number. So sometimes here 1A or 1B, if there is a cup and saucer, then we can say that it's 1A for the cup and 1B for the saucer. If it is very precious, जैसे मान लीजिए कोई अगर बॉटल है तो उसके ऊपर का जो ढक्कन है, बॉटल और वो उसका ढक्कन दोनों का नंबर हमें देना होगा. So यहाँ कोई अगर
गोल्डन बॉक्स अगर है उसके ऊपर का जो कवर होगा वो भी उतना ही अगर प्रेशियस है तो उसको भी नंबर देना होगा. सो फॉर दैट पर्पस इट मेंशन्ड 1A और 1B लाइक दैट. ये बेस्ट प्रैक्टिस में है. अदरवाइज कई बार जैसे हमारे यहाँ पर मेरीटाइम हिस्ट्री म्यूजियम जो हमारा मुंबई में इंडियन नेवी का जो म्यूजियम बना रहे, तो वहां पर अलग अलग युद्ध नौकाओं से विराट, विक्रांत, ये सारी जो युद्ध नौकाएं हैं इस पर से जो मटेरियल आता था तो उसका एक्सेशन करते समय में ये दिक्कत आती थी. तो उन्होंने कहा कि जो ओल्ड डेज में जो प्रैक्टिसेस होती थी क्या हम उसको यूज करें. अगर उस तरह से किया गया तो क्या होगा, कई बार जिसको हम कहते हैं कि आपका जो लिस्ट है रजिस्टर एंट्री नंबर इट्स एन डिफरेंट पार्ट. देन एंट्री नंबर के बाद आपका ऑब्जेक्ट का नाम होगा और डायरेक्टली यू कैन पुट देयर एक्सेशन नंबर आल्सो, देन द ऑब्जेक्ट नेम एंड देन द other descriptions over there. So some archival records will occur regularly throughout a year depending on the department as record material is suppressed, closed, or as copies of publications are delivered. So some archival records will come in randomly. So यहाँ पर चाहे जैसे भी आने दीजिए, चाहे वो आर्काइव्स रहने दीजिए, चाहे वो म्यूजियम रहने दीजिए, जब कभी भी आपको इस 3 पार्ट नंबर के इसमें कोई दिक्कत आए, समस्या आए ऑब्जेक्ट आईडी नंबर में, तब आप मुझे पूछ सकते हैं एंड इट विल बी यूनिक. सो नाउअडेज इट इज एन आइडियल और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. ओके, सो देन इट कम्स टुवर्ड्स द रजिस्ट्रेशन. अब ये बात बहुत बार आज भी हमारे यहाँ पर अराउंड more than 70-80% म्यूजियम्स एंड द आर्काइव्स जिनके पास रजिस्ट्रेशन आज भी नहीं हुआ है. so why it should necessary, because जो भी आपके पास चीज आती है जब आप उसको एक बार एक्सेशन नंबर दे देते हैं उसके बाद वो अगर आप रजिस्टर करते हैं then you will be become the authentic owner of that object, of that material. so there are different process. जैसे अगर आपका इंडियन एंटीक्विटीज एक्ट 1979 दिस इज एंटीक्विटीज रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6 और 7, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा. ये रिकॉर्ड अगर समझ लीजिए कभी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल आपके यहाँ से चोरी हो जाता है, तब रजिस्ट्रेशन से जो है आप उसको वापस पा सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन ओनली. अदरवाइज देयर विल बी सो मच प्रॉब्लम्स. हियर यू कैन सी रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए. द आर्काइव राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, associations with a person, place or event are preserved, interpretation of the object is enhanced, preservation of the object is added. The archive can identify and account for every object in the collection. And what do you really need to know about each object? Accession number, object ID और catalog number. अब यहाँ पर दो डिफरेंट बातें हैं. यहाँ जैसे ओल्डन डेज की हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट आईडी अलग हो सकता है और आज की तारीख में एक्सेशन नंबर जो है वो अलग हो सकता है. मगर प्रेजेंट अभी हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसमें ये दोनों हमारे पास एक ही है. ऑब्जेक्ट नेम, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, डेट एंड डायमेंशंस. एंटीक्विटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट फॉर्म जो है उसमें भी ये बातें आपको लिखनी है. देन एग्जामिन एग्जिस्टिंग डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन एंड और एक्सेस टूल्स. तो यहाँ भी नीचे आप जो पॉइंट देखेंगे, यू शुड गैदर ऑल नोन डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, जिसमें वेयर डिड द कलेक्शन ओरिजिनेट, who created the documents, was the collection donated or purchased, who donated or sold the collection, when was the collection acquired, why was the collection acquired, what is included in the collection, how much was included size wise, what types of material are included, is there biographical information on the creator available, are there any restrictions on access or use or copyright. यहाँ एक बात होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपको दे देता है आर्काइवल मटेरियल, स्पेशली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में ये हो सकता है. सो व्हेन यू वांट टू पब्लिश दैट मैन्युस्क्रिप्ट देन कॉपीराइट आपके पास हो सकता है, हो भी नहीं सकता है. सो द ओनर कैन आफ्टरवर्ड्स वो ये कह सकता है कि मैंने तो आपको पब्लिश के लिए मैंने ऑथराइजेशन नहीं दिया था, कॉपीराइट मैंने आपको नहीं दिया था. कुछ अगर आप वेबसाइट पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं तभी प्रॉब्लम आ सकता है. सो इट शुड बी क्लियर कि उसके लिए आपका पूरा 100% विथ द कॉपीराइट जो अधिकार है या नहीं है, ये सारी बातें क्लियर होना चाहिए. What are the primary subjects documented? Where are the collection physically located?
अब इसके साथ साथ मैं सिंपल प्रैक्टिसेस के इसमें ये बताना चाहूंगा, इफ द ओनर, ये उसके पास शुरू से ही क्रिएटेड, अगर उसने निर्माण किया होगा, अगर उसके पास उसके पुरखों से वो चीजें अगर उसके पास है, इफ इज द ओनर फ्रॉम लॉन्ग बैक फॉर मेनी इयर्स, तो आप उससे उससे ही इंफॉर्मेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर वो कलेक्शन उसके पास कहीं और से आया हुआ है, तो आपको वो भी वहां पर लिखना आवश्यक होगा। ये इसलिए कि जैसे अगर कोई इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट है, उसका अगर कहीं चोरी हो गया है, तो किसी ने चोरी करके ला करके उसके पास दे दिया होगा, या फिर उसने अगर परचेस किया होगा कहीं से चोरी किया हुआ, और वो अगर आपको डोनेट कर रहा होगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। सो यू शुड नीड टू क्लियर दीज ऑल थिंग्स, द बेसिक, द ओरिजिनल जो भी है उसका प्राइमरी सब्जेक्ट जो है उसको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। वर्कफ्लो की बात जब करते हैं, curators notify the processing archivist about newly acquired collection, then curators submit an accession and ratings form to the processing archivist along with the additional supplement documents, so inventories, donor email and other background information. The processing archivist creates an accession record in archive space and assigns a collection number. collection का भी एक नंबर होता है। A new resource record is also created as a placeholder. A physical file containing a printout of the accession form as well as other supplemental documentation is created and stored with the collection case files in proper room. The processing archivist assists with physically accessioning the materials, including rehousing, creating temporary labels, and transporting materials to temporary storage. If time permits, the processing archivist works with the curator to survey the collection and create a processing plan to add with future processing. So this is what the ideal workflow for any type of the collection after acquisition. Okay, so here is an archive accession form. So before putting accession number, you note these all data first: accession date, collection title, collection date, collection size, donor of the collection. तो ये सारी बातों को पहले लिखिए and then last you put this accession number. Okay, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि why should I mention this, ये लास्ट में क्यों लिखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि सारे चीजों का पूरा ये फॉर्म फिलअप करने के बाद भी ऐसा होता है कि आपके अथॉरिटीज और आपके एक्सपर्ट्स ऐसे बता सकते हैं यू शुड रिमूव सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और सम ऑफ द मटेरियल फ्रॉम दिस कलेक्शन। तब आपने अगर पहले से एक्सेशन नंबर दे के रखा है तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग all items, this description when you fill in this form, then at the end you can start this accession numbering. Okay, so here you can see again this number, accession number over here. Here it is only the 2014-019, but it's not the good practice as I mentioned that कई बार ये प्रॉब्लम हो सकता है। so इसके लिए आपके पास, सॉरी मैं यहाँ पर आपको आगे के इसमें थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। यस, here you can see that here is the number 1949.9.61. okay, so here it's mentioned that very fine cashmere shawl with black center and red ground in border. It is the description, but here you can see it is the number, accession number. Okay, so before this numbering, if there is an anything need to transfer of the title numbering, so कई बार ऐसा होता है कि टाइटल जो होता है ऑब्जेक्ट टाइटल, so उसमें भी अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके पास समझ लीजिए कि कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, कुछ दस्तावेज है, लूज पेपर्स है, तो कई बार ऐसा हो सकता है इट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, सो रेवेन्यू के फाइल्स में वो चला जा सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो किसी डायनास्टी से रिलेटेड होगा तो पर्टिकुलर उस डायनास्टी के कलेक्शन में जा सकता है, या फिर अगर वो किसी एरिया से संबंधित होगा तो उस एरिया के कलेक्शंस के लिए, जैसे तेलंगाना स्टेट रिकॉर्ड्स, तो या फिर निजाम स्टेट रिकॉर्ड्स उसमें चला जाएगा। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से वो किसी दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए वो डॉक्यूमेंट्स जा सकते हैं। सो ये सारी बातों को ध्यान रखना होगा। सो इट्स कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ टाइटल नंबरिंग। अब यहाँ पर ये लिंक में शेयर करूंगा, अगर मैं भूल गया तो कृपया बाद में आप मुझे याद दिला दें ताकि आप भी जो है इसके बारे में और डिटेल स्टडी कर सके। If there is a need of deaccession process,
एक बार अगर आपका ये कंप्लीट एक्सेशनिंग हो गया, उसके बाद भी अगर आपको ये करना पड़ा एनी हाउ किसी भी वजह से, तो आपके लिए ये बात आवश्यक हो जाती है। उसमें आपको ये क्लियर डीएक्सेशन फॉर्म भी होता है, जिसमें आपको डीएक्सेशन डेट, डिस्पोजल डेट, डिस्पोजल मेथड, नेम ऑफ द पर्सन ऑथराइजिंग द प्रोसेस एंड द रीजन, ये सारी बातें क्लियर। किसी ने ओरली बता दिया मैंने फाइलें नष्ट कर दी, ऐसा नहीं हो सकता, ये जुल्म हो जाएगा, इट्स अ क्राइम, ये गुनाह है। सो इट्स अनपनिशेबल आल्सो। सो प्लीज केयरफुल फॉर दिस थिंग्स। इसके लिए एक मैनुअल भी गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, आई विल शेयर दैट मैनुअल आल्सो विथ यू। अगर किसी को देना भी है एनी ऑब्जेक्ट, इफ एनी मटेरियल इफ यू वांट टू गिव टू द अदर्स, आउटगोइंग लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम, तो उस समय भी ये सारी बातें आपको यहाँ पर डिटेल रूप में लिखनी है। ओके, देन डीएक्सेशन आइटम्स के लिए, उसके लिए ये फॉर्मेट है जो यूज किया जाता है। नाउअडेज देयर आर द सॉफ्टवेयर्स और यू कैन मेक योर ओन सॉफ्टवेयर, और आजकल तो एक्सेल सीट का यूज करके भी इस तरह का वर्क किया जाता है। ओके, सो यू कैन यूज एज यू विश। ओके, देन कैटलॉग की जब बात आती है, यहाँ पर आपको जो है कैटलॉग पहले फर्स्ट बिफोर एक्सेशनिंग एंड कैटलॉगिंग, जब हम दोनों शब्दों का यूज करते हैं, वी यूज दिस टू वर्ड्स, जस्ट रिमेम्बर, जस्ट केयरफुल। आप जब किसी मार्केट में जाते हैं, या सिंपली इफ यू जस्ट विजिट एनी, you go to any hotel, what you ask them? Menu card. What is the menu card? The list of the items or the food items which are available in the hotel. Okay, so and the price with it. So like that, if you just visit any bookshop, then you ask them the catalog. Okay, if you just search in Google National Book Trust of India catalog, you will get the catalog. So what is the meaning of that catalog? There are two purposes. One is the list, but it's not the alphabetical or like that. जो ओनर है उसको लोगों के सामने उसको किस तरह से रखना है, हाउ टू प्रेजेंट दैट योर ऑब्जेक्ट्स आर द आइटम्स, अकॉर्डिंग टू दैट द कैटलॉग्स क्रिएटेड। कैटलॉग उस तरह से बनता है, मैं किस तरह से, अगर मुझे मेरे पास 1000 किताबें हैं, उसमें से मैं सब्जेक्ट वाइज अगर देना चाहता हूं, तो मैं इतिहास, भूगोल, संस्कृति, पॉलिटिक्स, साइंस, इस तरह से मैं उसका कैटलॉग बनाऊंगा। इफ आई वांट टू पुट एज ईयर वाइज, मेरे पास 1989 में कौन सी किताबें पब्लिश हुई, 1990 में कौन सी हुई, 1991 में कौन सी हुई, लाइक दैट। तो ये कैटलॉग जो है, ये आपका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर पर्पस, सो अकॉर्डिंग टू दैट कैटलॉग कैन चेंज, ये बदल सकता है। बट सभी में आपको जो है रेफरेंस कोड, टाइटल, नेम ऑफ क्रिएटर, डेट्स ऑफ क्रिएशन, एक्सटेंट ऑफ यूनिट ऑफ डिस्क्रिप्शन, लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन, दिस इज फॉर योर इंटरनल पर्पस। ओके, बट की प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कैटलॉगिंग, व्हाट इज द फोकस, the minimum records, cataloging rules, ये आपके यहाँ पर जो include all of the core required CDWA, CCO, कौना, ये क्या है, इसके बारे में आर्टिकल शेयर करेंगे, उसको भी आप जरूर पढ़ें। टर्मिनोलॉजीज, कंसिस्टेंसी, अथॉरिटेटिव सोर्सेज, ये सभी आपका इंटरनल वर्क के लिए है। मेटाडाटा स्टैंडर्ड एंड योर सिस्टम, एज फार एज पॉसिबल डू नॉट अलाउ लिमिटेशंस ऑफ अ कैटलॉग सिस्टम टू कॉज डिस्टॉर्शन ऑफ द डाटा, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कैटलॉग में, पर्टिकुलरली अगर कभी आपने नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की जो मैंने बात की थी, अगर उसका कैटलॉग देखा होगा, सो आई हैव दैट कैटलॉग अराउंड 550 MB एक्सेल शीट and it is around 24,30,000 manuscripts catalog is there. So bulk work. So इसमें जो columns उन्होंने दिए हैं, it is around 67 columns are there. So आप जितना डिस्क्रिप्टिव बना सकते हैं उतना अच्छा होगा, क्योंकि बाद में जब आपको ऐसा लगता है कि इसमें से क्या लेकर के हमें पब्लिश करना है, you can choose it easily. So जैसा पॉसिबल होगा जितना ज्यादा ये है वो कर सकते हैं। Here you can just see National Sanskrit University. This is the catalog of the manuscript. Here they mentioned as manuscript stock number, okay, और एंट्री नंबर के हिसाब से भी ये हो सकता है। Then यहाँ पर मैंने आपको एक कैटलॉग कार्ड दिखाया,
सो यहाँ पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है जिसके बारे में हमने बात की। देन यहाँ पर जब आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, सो आप ये सामने रखते हुए ये कैटलॉग कार्ड जो है उसको आप फिलअप करेंगे। बट अगेन इफ यू जस्ट सी द म्यूजियम्स कैटलॉग्स, तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा ऑब्जेक्ट डिटेल्स और ये सब मिलेगा, और उसमें लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेशन नंबर 2000.42.4। सो ये सारी बातें जो यहाँ पर बताई गई है, दिस इज व्हाट द बेस्ट प्रैक्टिस एंड वी शुड नीड टू क्लैरिफाई मिनिमम दिस थिंग्स। इसको जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, अभी यहाँ पर जब हम नेशनल आर्काइव्स की बात करते हैं तो वर्क जो होता है, तो आर्काइविस्ट और असिस्टेंट आर्काइविस्ट और द डायरेक्टर ऑफ आर्काइवल सर्विस, तो उसमें कैटलॉगिंग डिवीजन में जब बात करते हैं तो यहाँ अलग अलग वर्क है। असेंबल एंड अपरेसाइज प्रेजेंट गवर्नमेंटल कैटलॉग्स, ये नेशनल आर्काइव्स के इसमें हम देख रहे हैं, एंड इन्वेंटरीज, then organize and integrate present index for efficient temporary use, then check new inventories for subjects, then secure identification and location numbers from classification division. So these type of the different works are there in big scale or the big this archives on state or national level. Then you can see here nowadays in the software, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको इसका सारा डिटेल कंप्यूटर में, अभी मैनुअल लिखने की प्रथा जो है वो लगभग बंद हो चुकी है। जो अगर बेस्ट आर्काइव्स की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर अभी तो सभी कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। सो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट नेम और ये सारा, अगर डीएक्सेशन करना है तो डीएक्सेशन डेट, डिस्पोजल डेट और ये उसका रीजन, जनरल इंफॉर्मेशन, ये सारी बातें आप यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ एक बार अगर आपने एक्सेशन का भी अगर सॉफ्टवेयर अगर आपके पास है तो डीएक्सेशन करने के लिए आपको इजी हो जाएगा। अगर वो मैनुअल है तो इट विल बी लिटिल बिट लेंथी एंड हार्ड वर्क। ओके, देन अब मैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की तरफ आता हूँ। आपको क्या ये बात पता है कि सारी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डे जो यूएस में शुरू हुआ था 10th अक्टूबर, इट्स कॉल्ड एज द 10/10। सो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डे है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो इमर्जिंग फॉर्मेट, डिजिटल रिपोजिटरी, इवोल्यूशन और माइग्रेशन, बॉर्न डिजिटल, एसोसिएटेड मेटाडाटा, पंच कार्ड्स। तो कल हमने बात की थी कि आज की तारीख में बहुत बड़ा ये डिजिटल आर्काइव्स की दुनिया भी बन चुकी है। सो उसके लिए भी आप यहाँ पर देखते, जनरली हमें जो बॉर्न डिजिटल होता है उसके लिए नंबर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर जो बॉर्न डिजिटली नहीं है, अगर हमने उसको डिजिटाइज किया है तो आपको उसको नंबर देना पड़ेगा। सो उसमें भी आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को ले सकते हैं, बट वो भी जिसको हमने डिजिटाइज किया है उस समय भी एक ऑटोमेटिक एक नंबर जनरेट होता है। जैसे अगर आप कोई फोटोग्राफ लेते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें एक नंबर जनरेट हो जाता है। सो इट कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन आईडी। ओके, तो अगर उसको आपको नाम देना है, कुछ ये करना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो एक कॉलम को बढ़ा दीजिए और उसमें लिखिए कि उसका जो बॉर्न डिजिटल नंबर जो है उसको आप लिख सकते हैं, और आपने अगर कुछ अलग नंबर दिया है तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसे हम बहुत सारे फोटोग्राफ मोबाइल में कलेक्ट करते हैं और हमारा कंप्यूटर में जब हम डाल देते हैं, लैपटॉप में डालते हैं, तो हम फोल्डर बनाते समय क्या करते हैं, पर्सनल फोटोग्राफ्स और बर्थडे फोटोग्राफ्स। अगर बच्चे से रिलेटेड है तो बच्चे का नाम लिख देते हैं, उसके फोटोग्राफ्स। सो लाइक दैट, अगर किसी प्रोग्राम के, समझ लीजिए कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका नाम, उसका फोटोग्राफ। सो वी मेक द फोल्डर्स लाइक दैट, और उस फोल्डर का जो भी नाम होगा तो नंबर होगा। तो बाद में अगर आप उसको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से तीसरे डिवाइस में लेके चल जाते हैं तो पर्पज के हिसाब से फिर उसके फोल्डर्स बदल सकते हैं, बट उसका जो मेन जो बॉर्न डिजिटल जो है वो नंबर तो चेंज नहीं होगा। सो उसके आधार पर हम उसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो प्लीज कीप इट दैट ओरिजिनल आल्सो। उसमें भी आजकल मैनिपुलेट होने की बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है। अब हैंडलिंग की बात जब आती है, आप ये देख रहे हैं, ये कुछ ही महीने पहले एक हमारे देश के बहुत बड़े आर्काइव्स में हमने लिए हुए फोटोग्राफ है।
कोई वो पूछ सकता है कि आपने लिया हुआ कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना पेन, नोटबुक और रजिस्टर ये रख के फोटोग्राफ लिए हुए हैं। यहाँ आपको कुछ गलत दिखाई देता है, थोड़ा यहाँ देखिए ये पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट कैसे रखे हुए हैं, या यहाँ पर कैसे रखे हुए हैं, यहाँ पर किस तरह से रखे हुए हैं। देर इज अराउंड 1 लाख पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। सो ये इतना बड़ा कलेक्शन होने के बावजूद, और ये दीज ऑल आर दी ओपन रैक्स। सो यहाँ आपको ये बात समझनी है कि आज की दुनिया एक अलग दुनिया, एक रिवॉल्यूशन इसमें हो रहा है। डिकोडिंग और डिजिटाइजेशन की ये दुनिया बन चुकी है, जहां पर आज भी हम लोग जो है जब उसको हैंडल कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से उन्होंने रखा है, एक के ऊपर एक पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हैं। अगर आप लोगों ने कभी पाम लीफ हैंडल किए होंगे तो आपको पता होगा दे आर टू फ्रेजाइल। जनरली जो ओल्ड पाम लीव्स होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, वो टूट सकते हैं। सो ये दीज आर द बैड प्रैक्टिसेस। मैंने जानबूझकर उनके फेस यहाँ नहीं दिखाए क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कपबोर्ड से निकालने के बाद बैड कंडीशन में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स है, वो किस तरह से रखे। So is it and the best practices? No, these are the bad practices of the handling of the archival material. आफ्टर उसका सेपरेशन किए, क्लीनिंग किए, फिर उसके ऊपर नंबरिंग किए, उसके बावजूद भी देखिए इन लोगों को इतना नॉलेज नहीं है हाउ टू हैंडल दिस, हाउ टू पुट इट, एक के ऊपर एक इस तरह से उसको डाल के नहीं रखना चाहिए। दो दे आर रिसेंट, ये देख के ही पता चलता है कि ये 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के है, बट टिल देन these are not the good practices. So we need to care. Now here you can see these paper manuscripts. वो जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, so these are not good. Not only for the manuscript, but not for him too. क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में, my personal experience is that in my early days when I was started work in this manuscripts field, at that time I was handle the manuscript, thousands of manuscripts. इसी तरह से जो आप देख रहे हैं, like this way only. And I faced too much problems. जॉन्डिस जैसा जो प्रॉब्लम है, जिसको आप पीलिया कहते हैं, so 3 बार सीवियर प्रॉब्लम्स मुझे उस समय हुए थे, बिकॉज ये डस्ट जो है, ओल्ड डस्ट, ये आपके हाथों को जो लगेगा, आपके चेहरे को कहीं भी, आपके सांस के द्वारा, आप जो श्वास करते हैं ब्रीथिंग के द्वारा, ये डस्ट आपके शरीर में जा सकता है। एक बार पेट में चले जाने के बाद इसका बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। So these are not the good practices. आप यहाँ देख रहे हैं ये भाई साहब हाथ में मैन्युस्क्रिप्ट लिए यहाँ पर खड़े हैं, मगर उनका हाथ देखिए उन्होंने ऐसे रखा है जैसे मानो किसी चेयर पर या किसी सोफा, किसी कुशन पर बैठे हैं। These are not good practices. The handling of the manuscript is not only the problem by the insights or the, it's by the humans handling also. So यहाँ आप जो देख रहे हैं ये कटिंग वगैरह होना, तो ये सिर्फ कहीं प्रेस अगर भी हो गया जोर से, पाम लीफ की मैं बात करता हूँ, तो थोड़ा सा भी अगर जोर से प्रेस हो गया तो पूरा कट हो सकता है। सो जब हमारे पास कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट्स आते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, आर्काइवल मटेरियल जब आता है, उसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए कभी मेमोरी ऑफ द वर्ड रजिस्टर, यस्टरडे आल्सो आई मेंशन्ड अबाउट दिस। तो अगर आप कभी ये पढ़ेंगे मेमोरी ऑफ द वर्ड रजिस्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स या आर्काइवल मटेरियल है दुनिया में, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। Some manuscripts like the Rigveda, Gilgit manuscripts, or some this is Jaina manuscripts are also there. Then the Maitreya Vyakarna. ये अलग-अलग टॉपिक, अलग-अलग विषयों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स है, तो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में अलग-अलग नोट्स या जो डाटा पब्लिश हुआ है, इफ यू जस्ट सर्च इन गूगल दिस इज वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर मैन्युस्क्रिप्ट्स फ्रॉम इंडिया, then you will get the information about these all manuscripts. Shantinatha Charitra. Why it's called as the most important? Because of the subjects and its importance for today's society. So for that, जैसे हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में हम बात करते हैं, सो सच टाइप ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, आपके पास जो भी आर्काइवल मटेरियल आएगा, हो सकता है उसमें से ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हो सकते हैं। तो इसको जब आप देखते हैं, दो दे आर द मैप्स, दो दे आर द इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स और द डॉक्यूमेंट्स और द पाम लीव्स, एनीथिंग, अभी ये कागज को आप देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि ये कोई भी फेंक सकता है, बट फॉर मी इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट ओनली अ डच हिस्ट्री डॉक्यूमेंट, बट सी द कैलीग्राफी स्टाइल, द राइटिंग स्टाइल। सो पर्पज आपका जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ मच इट्स इंपॉर्टेंट एज पर योर ओन रिकॉर्ड।
सो नेशनल म्यूजियम की जब हम बात करते हैं, नेशनल आर्काइव्स की जब बात करते हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सो अकॉर्डिंग टू दैट द इम्पोर्टेंस ये जो है बढ़ता है। अभी जब हमारे पास पर्सनल कलेक्शन होता है, यू जस्ट सी ओवर हियर, इफ यू हैव सच टाइप ऑफ द कलेक्शंस, स्कॉलर विल कम। कई सारे ज्ञानपीठ अवार्ड जिनको मिले हैं, भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड जिन्हें प्राप्त हुए हैं, ऐसे लोग जब हमारे पास आए तो उनको भी इसमें जो है रुचि जो है जब उन्होंने दिखाई, जब हमने उसको रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास किया, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एनएमएम का जो फॉर्म है उसका, state oriented manuscript library where I was worked as a research scholar in 2007. So at that time such type of the format they used over there for the pamphlet manuscript. तो ये प्रोसेस और इन सभी से एक्विजिशन, एक्सेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सारी प्रोसेस, डिजिटाइजेशन, कैटलॉगिंग जब आप करते जाते हैं, धीरे धीरे आपको मैन्युस्क्रिप्ट सब्जेक्ट्स और उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। Though you are not the expert of the manuscriptology, till then you will get the information regarding this. So अभी ये तारीख-ए-ताज manuscript है. This is a unique manuscript and this is the history of India, Tariq-e-Hind by Al-Biruni. This is Akbarnama of Abul Fazl, which was wrote in 1577. Tabqat-e-Akbari. This was unpublished. I was published this in last before 2 years. These all manuscripts are in my collection. So Tariq-e-Deccan by Hafizuddin Ahmad. This is unpublished history of Deccan, which was wrote by Hafizuddin Ahmad in 1729. This is published manuscript now by Government Oriental Manuscript Library of Mysore, and 72 specimen cast. This is an interesting manuscript which shows us the different costumes and the cultures of India, different communities of India. So this is the first manuscript about Chhatrapati Shivaji Maharaj, and it was published. Here you can see that this is the gold inker Quran, and we use this for the display or the exhibitions for the communities. And then this is the this is a manuscript of Kupadi Khanan Lakshanam. So this is important for our study, the water culture. This is the Godavari Mahatmya, Bhujan Kutuhal. These are few examples. The Farsi Yoga Shastra, how to pronounce the Vedas. So this is the Vedavachan, Parsi Bhagavad, Sri Krishna Leela, Parsi Ramayan by Ganesh Dikshit in 1618. This is the Bhaskaracharya's Bijganita Leelavati. So why should I say about this manuscript? Because once you start handling this manuscript, then you will get the idea about this how we start our work. जब भी हम किसी दस्तावेजों को हाथ लगाते हैं, आर्काइवल मटेरियल को, कलेक्शंस को, डोनेशंस को, तो wash your hands with soap and dry them completely before handling manuscript. Turn the pages of a bound manuscript as little as possible. Turn the pages slowly and gently from the middle of the edge. If a binding is difficult to open, handle it carefully and do not force it to open. Open the manuscript gradually, lay it on a table. Avoid touching text with fingers or any other materials. ये छोटी छोटी बातें हैं. Always use pencils to make notes. Pens should not be used while consulting the manuscript, as the ink, if fallen, may damage the manuscript, leaving permanent mark on it. ये आपका जो जनरल पेपर्स है उसके बारे में भी है. It's not for the original manuscript. Do not touch illuminations, illustrations like that. So there are so many such type of the instructions. I will share this file with you so that you can read it, and at the time of handling of the manuscript you need to care about this all, and at the time of storage we need clean and tidy room is necessary for the storage of manuscript, good lighting and good ventilation in the storage area. If just I want to speak about this topic only, तो कई सारी बातें उसमें हम बात कर सकते हैं. जैसे गुड लाइटिंग एंड गुड वेंटिलेशन की जब बात करते हैं, गुड लाइटिंग मींस सिर्फ आपके इसमें जो अलग अलग लाइट्स जो आप लगाते हैं, दिस आर्टिफिशियल लाइट्स, सिर्फ उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है. यहाँ पर जो है नेचुरल लाइट्स, कहाँ किस समय हमें नेचुरल लाइट चाहिए वो भी हमें उसका नॉलेज होना चाहिए. गुड वेंटिलेशन, व्हाई? बिकॉज अगर आपका एरिया अगर ह्यूमिडिटी है तो आपके पास, या फिर अगर ज्यादा ड्राई अगर है या फिर ज्यादा कोल्ड है, तो आपको उस समय में वेंटिलेशन प्रोसेस जो है उसको समझ लेना चाहिए. हम इंसान हैं, हमको तकलीफ होती है.
वो जो डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स है, पेपर मैन्युस्क्रिप्ट्स या पेंटिंग्स जो भी है, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर अध्ययन करना है। और अकॉर्डिंग टू दैट कई बार तो हम हमारे म्यूजियोलॉजी के कोर्स में ये बोलते हैं, हम लोग जब आर्काइव्स में या म्यूजियम में आते ही हम लोग एसी शुरू कर देते हैं। इन समर डेज जनरली आउटसाइड देयर इज 35 40 45 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। हम जैसे ही एंट्री करते हैं एसी ऑन कर देते हैं, और बाहर जब चले जाते हैं, ऑफिस जब क्लोज हो जाता है दैट टाइम शट डाउन, वो सब बंद कर देते हैं। सो ये तो ज्यादा और हार्मफुल है। अब संडे अगर होगा, सैटरडे संडे अगर छुट्टी होगी, तो क्या हो जाएगा कि सेम टेम्परेचर है मगर एसी चालू नहीं है, तब हमारे आर्काइव्स में या जो म्यूजियम में जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनके लिए वो ज्यादा हार्मफुल है। एसी जब ज्यादा, यानी अगर समझ लीजिए कि 20 डिग्री 22 डिग्री, कई लोग होते हैं आर्काइव्स में कि 22 डिग्री टेम्परेचर सेट कर देते हैं, तो मगर उस समय उनको ये पता नहीं होता है कि दिस टेम्परेचर is harmful for the palm leaf manuscripts or the paper manuscripts or the paintings। तो ये बातें हमको समझनी है, और उसके बाद ही हम उसके तरह जो है उसका स्टोरेज करना है। Then train personnel to inspect reserve rooms and manuscripts regularly, not only for the manuscripts but any type of the archival material or more dust, insects and rodents. A contained room where recently archived or donated manuscripts should be examined for insect or fungus attack and kept under observation before being documented and brought into storage area. Use blind screens and shutters to protect documents against sunlight. Do not expose manuscript to direct sunlight as this may cause pages and inks to discolor and break down. But ये इसको भी हमको बहुत अच्छे से ठीक से समझना होगा। Provide fire extinguishers और these things. So हैंडलिंग करते समय पर्टिकुलरली जब आप मैन्युस्क्रिप्ट आपके आर्काइव्स में रखेंगे, so आप इस तरह से रख सकते हैं, ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है उस तरह से आप उसको रख सकते हैं। अदरवाइज व्हेन यू वांट टू handle it, or when you want to show something to others from the manuscript, then please use the hand gloves and touch very gently to it. Any problem? Okay, sorry. No sir, no sir. कुछ आवाज आ रही थी। ओके, सो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग दिस सिट्रेनिल ऑयल और लेमन ग्रास ऑयल ऑन द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स आल्सो, प्लीज कीप इट केयरफुली। आप यहाँ पर देख रहे हैं इट्स एन वेरी डेलिकेट वर्क, तो उसको प्रॉपर रखते हुए आपको काम करना है। अगर ये एक के ऊपर एक, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा है बैड प्रैक्टिसेस, सो अगर उस तरह से रखा, अगर ये अप्लाई करते हुए भी अगर हमने उसी तरह से पाम लीफ को रखा, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एट द टाइम ऑफ डिजिटाइजेशन आल्सो यू शुड नीड टू केयर इट। सो प्रॉपरली हैंडलिंग। देन जब आप रखते हैं तो एटलीस्ट जो हमने लास्ट टाइम जो शोकेसेस आपको दिखाए, तो वो तो सिर्फ रैक्स है, देयर इज नो एनी ग्लास और एनी डोर्स और एनीथिंग। सो अगर समझ लीजिए कि डस्ट या फंगस और द रैट्स वो उसको नष्ट कर सकते हैं, इजीली नष्ट कर सकते हैं। कोई चोरी भी इजीली कर सकता है। सीसीटीवी कैमरा है तो ठीक है, इफ नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो यू शुड एटलीस्ट कुछ डोर्स होना है, ग्लासेस होना है। सो दीज आर दी जनरल प्रैक्टिसेस, और ये कोई भी आम आदमी भी इजी से समझ सकता है। हम घर में हमारे कपड़े, हमारी किताबों को भी ठीक से रखते हैं, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है ना हमारे लिए। सो वी शुड केयर फॉर दिस। देन द मोर बेस्ट प्रैक्टिसेस, और ज्यादा कुछ अगर बेटर है आप यहाँ देख सकते हैं, प्रॉपर बॉक्सेस आप उसके लिए बना सकते हैं। कि आजकल हम जब आर्काइवल मटेरियल लूज पेपर जो होते हैं, हम उसको ऐसे ही नहीं रखते, फाइलों में नहीं रखते। नाउअडेज ये प्रैक्टिस चेंज हो गया है, चेंज। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एसिड फ्री उसका एक फोल्डर मिलता है, उसमें एक एक पेपर को रखते हैं। जिन लोगों ने आर्काइव्स में अगर विजिट किया है या आप अगर आर्काइव्स में काम करते हैं, एसिड फ्री फाइल मिलते हैं, एसिड फ्री ये फोल्डर्स मिलते हैं, उसके अंदर रखते हैं। और कुछ इस तरह के बॉक्सेस होते हैं, इसके लिए भी एसिड फ्री मटेरियल यूज किया जाता है। और पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह जो है वो इसमें भी रख सकते हैं। कई बार उसके लिए कुछ अलग स्टोरेज बॉक्सेस भी, वुडन बॉक्सेस भी यूज किए जाते हैं। एंड for the big size of files and documents, you should use such type of the boxes over there. And you can see here one of the best archives which I was visited. This is Gangetok Namgyal Institute of Tibetology's archives.
and here you can see there are around 40,000 plunks, wooden plunks manuscripts. एक हमारे पास पेपर होता है ना, एक पेज होता है, so like that wooden plunks, so around 100 or 150 wooden plunks उसका एक मैन्युस्क्रिप्ट बन जाता है, और उस तरह से 40,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स इनके पास अवेलेबल है. So you can see over here, these are the best practices there. So we should care for this. And here you can see again, to properly handle your archival collections, you must do this. क्या नहीं करना चाहिए ये तो लिखा होता है हमारे लाइब्रेरी में भी. जब हम विजिट करते हैं तो देखते हैं कि डोंट ईट, ड्रिंक, स्मोक और ब्रिंग पैकेजेस, तो ये सारी बातें वहाँ लिखी रहती है, मगर क्या करना चाहिए वो हमको यहाँ समझना है. प्रोवाइड म्यूजियम स्टाफ एंड रिसर्चर्स with written guidelines on using and handling archival collections, and have them watch a preservation handling this videotape when they first use the collection. Provide guidance to researchers and museum staff about how to handle audio, visual, electronic and oversized material. Minimize all handling of original archival documents. So at least मैं ये सारी बातें यहाँ पर आपको कुछ पढ़ के बताने के बजाय मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये बताना चाहूंगा कि for the archival material, especially when I was wrote this book, I was mentioned these all things. You need at least your master copy keep in your reserve area. आप जो भी आपका जो स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं हमारे म्यूजियम में या आर्काइव्स में, हम उसको स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं. मास्टर कॉपी और द ओरिजिनल कॉपी जो है वो आपको आपके स्ट्रॉन्ग रूम में रखनी है, वो डिस्प्ले में या किसी को हैंडल करने के लिए नहीं देनी है. सेकंड थिंग इज दैट जो आप उससे उसका जो फोटोकॉपी बनाएंगे, दो बातें हैं फोटोकॉपी बनाने के लिए भी. वन इज दैट आप उसको हैंडमेड पेपर वगैरह जो होते हैं पर्टिकुलरली उसके ऊपर भी प्रिंट ले सकते हैं. सो इट लुक्स एज ओरिजिनल, इट्स नॉट द ओरिजिनल, लुक्स एज द ओरिजिनल. रिप्लिका जिसको हम कहते हैं, कई बार ओरिजिनल जो मूर्तियां वगैरह होती है उसकी रिप्लिकास बनाई जाती है. It looks as it is, but it's not the original. So like that, archival material, though they are the maps, though they are the paintings or the any historical documents, तो आप उसको replica बनाते हैं, photocopy बनाते हैं. So उसको भी डिस्प्ले में रखते हैं. और थर्ड जो होता है थर्ड कॉपी, सो वो कॉपी आप हैंडल के लिए दे सकते हैं, बट इट शुड बी प्रॉपरली, उसको जो है बाइंड किया होना चाहिए, प्रॉपरली उसको भी लैमिनेट होना चाहिए. टिश्यू कल्चर टिश्यू पेपर वगैरह जो होता है जापानीज टिश्यू पेपर वगैरह, उसमें लैमिनेट करके आप दे सकते हैं. सेकंड थिंग इज दैट when you kept it in archives or in your strong room or at anywhere, you should need regularly this उसके लिए just very sorry I forget the word, हम उसको जो है उसका इंस्पेक्शन रेगुलरली हमको करना चाहिए, क्लीन रेगुलरली करना चाहिए. और उसको आप जब ये सारे पेपर्स वगैरह डिजिटाइज करते हैं तो डिजिटाइजेशन करते समय में आपको समझ में जब आ जाता है कि कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं है, तो एक्सपर्ट जो है उनकी मदद लेकर के ओरिजिनल के ऊपर आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं. इफ नॉट पॉसिबल तो डिजिटल इसमें जो है आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, एंड देन यू कैन टेक द प्रिंट so that it will become more useful for others. Okay, so ये बात आपको याद रखनी है. So this is my first book, Manuscriptology and Museology, but this is the third edition. The first edition, the name Manuscriptology from Indian Sources. So and this is the second book, A Guide for Preservation and Fumigation. So fumigation के लिए particularly हम देखते हैं हमारे पास जो ओरिजिनल मटेरियल होता है, जनरली हमारे पास प्रिंटेड पेपर्स होते हैं, रिटन पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं. हमारे यहाँ पर हमारे लाइब्रेरियन और आर्काइव्स क्या करते हैं, सभी के लिए एक जैसा ही फ्यूमिगेशन कर देते हैं. सेम मटेरियल जो केमिकल जो यूज करते हैं सेम मटेरियल यूज करते हैं एंड सेम टाइम पीरियड होता है. सो दिस इज वन ऑफ द बैड प्रैक्टिसेस. तो उसके लिए आप उसको बाइफर्केशन करके अलग अलग मटेरियल को अलग अलग तरह से आपको उसको जो है फ्यूमिगेशन करना है. फ्यूमिगेशन चेंबर्स आर अवेलेबल देयर नाउअडेज, अदरवाइज यू कैन मेक योर ओन. आप अपना खुद का भी बना सकते हैं. उसके लिए क्या सिस्टम से किस तरह से आप उसको कर सकते हैं, अगर कभी फिर मौका मिले तो हम उसके बारे में बात करेंगे. तो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में ही एक बहुत अच्छी बात आपको लास्ट पेज के ऊपर लिखी हुई मिलती है.
तैलाद रक्षेत जलाद रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधनात् मूर्खस्य हस्तेन दातव्यम एवं वदति पुस्तकम। ऑयल जो है या वाटर जो है उससे उसकी रक्षा कीजिए, उसको कभी भी स्पेशली पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह जो है उसको लूज बांध के मत रखिए, उसको थोड़ा सा ठीक से टाइट बांध के रखिए ताकि वो लूज रहने से टूट न जाए। मूर्ख सस्ते, कभी जो मूर्ख लोग हैं जिनको कैसे हैंडल करना है पता नहीं है, उनके हाथ में इसको कृपया मत दीजिए, क्योंकि अभी कुछ उदाहरण मैंने आपको दिखाए तो ये बातें हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में भी मेंशन की हुई है। तो थैंक्स अ लॉट। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस देन अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बिफोर ऑफ दैट जस्ट विल सी इन चैट बॉक्स, अगर कुछ सवाल है तो देखेंगे। No, sir, there is no questions. Okay. So if there are any questions, then you can unmute yourself and you can ask. Yeah, session is open for questions. Thank you, madam. Thank you, शर्मा जी। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। Sir, I think there is no questions. So एक फोटोकॉपी के बारे में रेप्लिका तुम जो कह दे है ना, प्लीज अंडरस्टैंड। ये आपको पता नहीं चला मैंने जो कहा था? नहीं। See, if you have any original record with you, especially document, paper document, palm leaf material, palm leaf manuscript, or any painting or any map, then you please keep it in your strong room, not put it in your display area. Generally nowadays 99% archives and museums, they kept in display. वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं हमारे पास ये चीज है, कॉलर टाइट करने के लिए, बट the conservation that object is what the prime responsibility. आप उसका रिप्लिका बनाइए ना, एज इट इज रिप्लिका आप बना सकते हैं। सो फोटोकॉपी जब आप करते हैं तो जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, हैंडमेड पेपर्स आपको मिलते हैं, हैंडमेड पेपर के ऊपर भी आप प्रिंट ले सकते हैं। जनरली येलो पेजेस जो होते हैं, येलो कलर हैंडमेड पेपर्स, उसके ऊपर प्रिंट लेते हैं, और उसके लिए जो प्रिंटर्स है हमारे यहाँ, जैसे ब्रदर और ये प्रिंटर यूज करते हैं, उसके बजाय थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर्स को यूज करते थे। आप ये प्रिंट ले सकते हैं एंड यू कैन पुट इट इन डिस्प्ले, और आप वहां लिख सकते हैं, आपका जो इन्फॉर्मेशन का छोटा सा वहां एक ब्रासलेट वगैरह लगा होता है, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि दिस इज द रिप्लिका ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड द ओरिजिनल विच इज इन आवर आर्काइव्स, इन आवर स्टोन बुक, एंड उसके फिर जो भी डिटेल होंगे आप वहां लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमने किया है हमारे म्यूजियम में, आर्काइव्स में हमने किया है, वी हैव अराउंड 22,000 ओरिजिनल पेपर्स, मगर हमने उसमें से एक भी ओरिजिनल को डिस्प्ले में नहीं रखा है, हमने सारे जो है उसके फोटोकॉपीज रखे हुए हैं। डायरीज, हमारे पास कई सारे ओरिजिनल डायरीज है। पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी इस तरह से कर सकते हैं, और पाम लीफ का जो बेस्ट गुड कंडीशन में है, तब आप उसको जो है प्रॉपरली ट्रीटमेंट्स करके वगैरह, इंक फिक्सिंग वगैरह जो भी है वो करके आप उसको वहां रख सकते हैं, या फिर जो सिट्रिन ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल वगैरह जो भी अप्लाई करना है, रेगुलर ट्रीटमेंट्स करके आप उसको रख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। Yeah. Thank you, sir. I mean, despite your ill health, I mean, thank you so very much. Please take good care of yourself. Yeah. Thank you. Thank you. Here in chat box, Deepak ji asked, can you please share the PPT? Very sorry, Deepak ji, it's not allowed to me, but I will share the reading material again. And after that also, if there is any problem, then you can ask. So once again, thank you. Thanks a lot to all of you. And now we'll stop here. Thank you, sir.